A warm welcome to all the students of class 4th to the preparation of the term 2. Now we are beginning with the course book part 2nd. Before that, some points for you children. Okay, you are supposed to observe all the videos very carefully. आपको सारी videos बहुत आराम से बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करनी है, वॉच करनी है. वाई? बिकॉज द नेक्स्ट टाइम ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इनसाइड. नो डायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम देयर डायरेक्टली फ्रॉम द लेट्स ट्राई 1, 2 or 3. Next point, the grammatical exercise will be done in the live sessions. Live sessions will be there every week for every class for grammar exercises. Thirdly, notebook submission will be compulsory for all the students. Till now, some students have not submitted the notebook for a single time. Now it will not be done. If you are not supposed, if you are supposed to do your exercises regularly, you are also supposed to submit your notebooks on time in the school. Okay, let's begin. And those who are again not submitting the notebooks, no exam will be taken for those people, those who have not submitted the notebooks. Notebook submission is quite compulsory this time. Let's begin with the chapter. Chapter 7, Domingo's first glimpse of Vijayanagaram. डोमिंगो की पहली नज़र, पहली झलक किसको? विजयनगर सिटी को. द वर्ड ग्लिम्स मीन्स अ ब्रीफ पासिंग लुक ऑफ एनी प्लेस. जब हम कहीं से निकल रहे हैं और एक सरसराती निगाह से किसी चीज़ को देखते हैं, हल्की नज़र से किसी चीज़ को देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ग्लिम्स. Glimpse can be of a person, place or a thing. Look at the picture given in the chapter and describe it. What do you see? What kind of city was this? अब हमें क्या कहा गया है कि look at the picture in the chapter. हमें क्या देखना है? एक जो पिक्चर दी हुई है हमारे चैप्टर में, हमें उसको ऑब्जर्व करना है. पेज नंबर 2 पे यू कैन सी द पिक्चर. You can see it is a picture of an old city. The street is very broad. You can see some cattle, some animals. Then large number of people are there in an area, in a lane. Okay, it is a bazaar type structure. You can see the shops are open. The people are selling in the open market. You can see the heaps of the things which are kept in the bags. You can see the people. Now next you can see there are the people who are wearing so many jewelry in their neck or in their hands. The people are decorated with the gold. You can see an elephant, and on the elephant the king is sitting, and the king is wearing a large hat on his head. Okay, so what is asked to us? It is asked that what kind of city was this? It is an old kind of city. Is this a picture of a modern city or an old city? It is a picture of an old city. You can see the people, large number of people in a small area. The city is made up of the buildings which are having the palace like structure, जो कि महलों जैसा स्ट्रक्चर है. आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता. तो ये कैसी सिटी है? ये है एक ओल्ड सिटी. लेट्स रीड द चैप्टर. रीडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन. लेट्स रीड. द विजयनगरम एम्पायर वॉज फाउंडेड इन 1336. कब खोज हुई थी इसकी? कब ये हुआ था? इस्टेब्लिश 1336 में. इट वॉज मोस्ट सक्सेसफुल ड्यूरिंग द रेन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट किंग. और ये सबसे सक्सेसफुल कब था? जब इसके राजा कौन थे? राजा कृष्णदेव राय. और वो कब तक इसके राजा रहे? 1509 1509 टिल 1529, 20 साल तक. क्यूरियस ट्रेवलर्स फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स इंक्लूडिंग अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर डोमिंगो पेस केम टू विजिट दिस प्रॉस्पीरियस लैंड ऑफ फेबल्ड रिचेस. बहुत सारे लोग दूर दराज से इस देश की प्रसिद्धि को सुनकर, इस देश की जो वहाँ के लोग, यहाँ के लोग बहुत समृद्ध थे, बहुत पैसा था यहाँ के लोगों के पास, तो यहाँ की प्रसिद्धि को सुनकर बहुत लोग दूर दूर के एरिया से भी यहाँ के राजा को और विजयनगर जो एरिया है उसको देखने आते थे, विजयनगर सिटी को देखने आते थे. और इन्हीं में कौन आया था? एक पोर्टुगीज़ एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर मीन्स जो कि इधर उधर की एरियाज़ को, इधर उधर सिटीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में घूमता है, कंट्रीज़ में घूमता है, वहाँ के बारे में नए फैक्ट्स जानने के लिए. तो एक पुर्तगाल का एक एक्सप्लोरर भी आया था और उसका नाम था डोमिंगो पेस. केम टू विजिट दिस प्रॉस्पिरस लैंड ऑफ फेबल्ड रिचेस. जहाँ की समृद्धि की प्रसिद्धि दूर दूर तक लोक कथाओं में फैली हुई थी. ऐसे एरिया, जैसे हम उज्जैन की समृद्धि के बारे में जानते हैं कि उज्जैन बहुत अच्छी सिटी है, और आज भी प्राचीन कहानियों में भी हम उज्जैन के बारे में बहुत सुनते हैं. तो ऐसे ही दूर दूर तक ये सिटी भी फेमस थी. पेस लेफ्ट बिहाइंड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू दिस लैंड विच द पोर्टुगीज कॉल्ड बिसनगा. और पेस ने यहाँ से जाने के बाद एक अकाउंट, एक डिटेल्ड अकाउंट, एक आर्टिकल लिखा इस सिटी के बारे में, और उसको वहाँ, इस सिटी को पोर्टुगीज लोग क्या कहते थे? बिसनगा. एंड ही डिस्क्राइब्ड इट एज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड. और पेज ने अपने आर्टिकल में इस सिटी को, बिसनागा को या फिर विजयनगर को, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रोवाइडेड, मतलब हर साधन आसानी से अवेलेबल होने वाली सिटी बताया था. ओके,
Let's read the story. As Domingo walked into the main street of the bazaar with Fernão, a Portuguese horse dealer, Fernão chuckled at Domingo's expression. Domingo's eyes seemed to be popping out of his head. जब डोमिंगो खुद यहाँ होकर गए थे तो उन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छा लिखा था. तो हम डोमिंगो की जो पहली विजिट थी उसके बारे में अब पढ़ते हैं. एज डोमिंगो, जब डोमिंगो पहली बार यहाँ पर आए थे विजयनगर में और यहाँ के मेन स्ट्रीट में, यहाँ के बाजार में घूम रहे थे, किसके साथ? फेरनाओ के साथ, जो उनके फ्रेंड थे फेरनाओ. फेरनाओ कौन थे? एक हॉर्स डीलर थे जो कि घोड़े बेचते और खरीदते थे. फेरनाओ चक्कल्ड एट डोमिंगोस एक्सप्रेशन. जब डोमिंगो ने पहली बार विजयनगर सिटी को देखा तो वो सरप्राइज हो गए. और उनके जब फेस को किसने देखा? फेरनाओ ने, जो उनके साथ घूम रहे थे. जब फेरनाओ ने डोमिंगो के फेस को देखा तो क्या देखा कि डोमिंगो की आंखें पूरी चेहरे से बाहर निकल आई हैं. वो इतने आश्चर्य से उस सिटी को देख रहे थे और फेरनाओ बहुत जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े. आई वॉज सो ऑल्सो सरप्राइज व्हेन आई फर्स्ट केम टू बिसनगा. और फेरनाओ ने क्या कहा? जब मैं खुद भी पहली बार बिसनगा या फिर विजयनगर आया था तो मैं भी इसी तरीके से आश्चर्य में भर गया था. आई हैव नेवर सीन सो मैनी पीपल इन वन प्लेस इन माई लाइफ. मैंने इतने लोगों को एक साथ अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है. डोमिंगो मरवर्ड एंड डिसबिलीव. डोमिंगो अपने मन ही मन कुछ बुदबुदा रहे थे. उनको वो अविश्वास था, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कितनी बड़ी सिटी थी और कितने कैसे इतने सारे लोग एक ही जगह पर घूम रहे थे. स्टेयरिंग एट द ब्रॉड स्ट्रीट लाइंड विथ फाइन बिल्डिंग्स. और दोनों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई थी. एंड क्राउडेड विथ पीपल, कैमल्स, हॉर्सेज एंड ऑक्सन. और लोगों के अलावा वहाँ पे और किसकी भीड़ थी? कैमल्स, बहुत सारे ऊँट, घोड़े और बैल. देयर वर वॉल्यूबल मर्चेंट सेलिंग बास्केट्स हीप्ड विथ स्पार्कलिंग डायमंड्स. वहाँ पर वहाँ के लोकल जो मर्चेंट्स थे, जो कि वहाँ के कस्टमर से बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत There were voluble merchants selling baskets heaped with sparkling diamonds and emeralds, rubies as large as ducks' eggs, and pearls and fine silks. जो वहाँ के लोकल मर्चेंट्स थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट वे में वहाँ के लोकल कस्टमर से बात कर रहे थे और बहुत ही पेशेंटली उनको समझा रहे थे. और उनकी दुकान पर क्या बिक रहा था? दे वर सेलिंग बास्केट्स हीप्ड विथ, ऐसी टोकरियाँ जो कि किससे भरी हुई थी? चमचमाते हीरों से. एंड एमरॉल्ड्स, और भी तरह तरह के बहुमूल्य रत्न जैसे माणिक्य, रूबी, पुखराज, पन्ना, नीलम, ऐसे तरीके के बहुत सुंदर सुंदर रत्न उनके पास थे. और इनमें से जो रूबी थे वो किस साइज़ के थे? डक्स की एग जितने बड़े थे. एंड पर्ल्स, और मोती, और बहुत तरीके के सिल्क के चमकीले कपड़े. He could also see fruit sellers selling oranges, grapes, limes and limes. और वहाँ पर जो फ्रूट वेंडर्स थे वो क्या बेच रहे थे? ऑरेंजेस, लाइम्स एंड ग्रेप्स. एंड वेजिटेबल सेलर्स, और वेजिटेबल सेलर्स के पास क्या था? ब्रिंजल्स, टोमेटोज एंड रेडिशेस. What are those? Domingo asked curiously, pointing to a basket of enormous green fruits. एक बहुत बड़ी शॉप पे एक बहुत बड़ी बास्केट में एक हरे रंग के बड़े बड़े फल रखे हुए थे. तो उस डोमिंगो ने उनकी तरफ पॉइंट करके कहा कि ये क्या है? व्हाट आर दोस? बहुत आश्चर्यचकित होकर, बहुत उत्तेजना से उसने पूछा, क्यूरियसिटी से उसने पूछा. पॉइंटिंग टू अ बास्केट ऑफ एनॉर्मस ग्रीन फ्रूट्स विद बम्पी. उनकी स्किन कैसी थी? बम्पी मतलब सॉफ्ट और स्मूथ नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी. एंड कवर्ड विथ टाइनी कोन लाइक प्रोजेक्शंस. और उन पे कैसे स्टिकर, कैसे दैट मीन्स कैसी उस पर जो आकृतियाँ बनी हुई थी वो कैसी थी? दे वर जस्ट कोन लाइक प्रोजेक्शंस. कोन लाइक उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बने हुए थे. ओ दोज आर जैक फ्रूट्स. अरे वो तो कटहल है. फेरनाउ सेड नॉलेजेबली. उसने बहुत अच्छे से समझाया. दे आर वेरी पॉपुलर हियर इन बिसनागा. ये यहाँ विजयनगर में या बिसनागा में बहुत पॉपुलर है. इफ़ यू कट द टफ आउटर स्किन, अगर तुम बाहर की इस खुरदरी चमड़ी को निकाल दोगे या स्किन को निकाल दोगे, पील को निकाल दोगे, देयर आर फ्रेगनेंट. उसके अंदर बहुत खुशबू वाले स्वीट येलो बल्ब्स इनसाइड. बर्ड्स जैसे या बल्ब्स जैसे अंदर येलो कलर के फ्रूट्स हैं जो कि बहुत मीठे होते हैं और उनका टेस्ट कैसा होता है? बनाना के जैसा. ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो. थैंक्स फॉर लिसनिंग.